Welcome to a brand new episode of WhatsApp University, Jhakaas या बकवास. My name is Rohini and of course with me is Sachin Kalbag. हम दोनों हफ्ते में एक बार मिलते हैं Zoom पर and we discuss news that has come to us on WhatsApp या फिर sometimes even on the internet. कभी-कभी Instagram पर भी आप आजकल Instagram पर भी आप news देखते हैं and that's the danger of it because I remember when we were growing up the only place that we could watch or hear the news was either All India Radio, okay, और आज भी रेडियो क्योंकि मैं एक रेडियो जॉकी हूँ मैं I'll take half a second to explain this. Even today, it's been over 20 years of private FM in India, right? प्राइवेट एफएम यानी कि हम जैसे लोग जो रेडियो जॉकीज हैं हमको अलाउड नहीं है न्यूज करना बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट अलाउड एज अ फॉर्मेट व्हाई बिकॉज देयर कुड बी मिस इन्फॉर्मेशन और ये गवर्नमेंट के तहत ऑफ कोर्स अगर आप न्यूज सुन सकते हैं तो वो केवल सुन सकते हैं एआईआर पर विच इज द गवर्नमेंट चैनल जहां पर एक न्यूज प्रोग्राम होता है ये तो बात हो गई बहुत सारे साल पहले की जहां पर न्यूज लोग रेडियो पर सुना करते थे फिर आया ऑफ कोर्स एंड देयर यूज्ड टू ऑलवेज बी प्रिंट यानी कि आप पढ़ सकते थे देन ऑफ कोर्स टेलीविजन हैपेंड और हम रात को 9 बजे न्यूज देखते थे बिकॉज दिन में क्या हुआ हम एंड आई ग्रू अप इन अ हाउस जहां पर हमसे कहा जाता था कि आपको न्यूज पढ़ना भी है सुनना भी है और देखना भी है वेल द डेंजर टुडे इज दैट everywhere you can turn around you can find news you can find it on Twitter you can find it on Instagram and इसकी वजह से जाहिर सी बात है अक्सर ऐसा होता है that your news that is coming to you is not verified. Sometimes it's false and sometimes it's fake. And that is the reason why we do this podcast. It's called WhatsApp University Jhakaas ya Bakwas. And as the name suggests, a lot of us get our news from WhatsApp. हम देखते हैं एक फॉरवर्ड और कहते हैं अच्छा ऐसे हो है और फिर हम बिना सोचे उसे फॉरवर्ड भी कर देते हैं ताकि ये फॉरवर्डिंग पर रोक लगाई जाए. That's why we exist. Hi Sachin, welcome to the show. Thank you. And what a lovely introduction. I mean, radio is such an important part of our growing up, Rohini. It is unbelievable. और हम अभी भी कि देखिए रेडियो का जो चार्म है वो अभी तक गया नहीं क्योंकि so according to me as I don't know whether you agree with me to me the biggest thing about radio is discovery. Okay, कि and आज मेरा फेवरेट आरजे मेरे लिए कौन सा गाना बजाने वाला है ना और रोहिणी ने अगर मेरा वो गाना बजाया तो मेरे दिल में जो खुशी आती है ना वो एप्पल म्यूजिक amazon म्यूजिक यूट्यूब से नहीं आती लेकिन जो गाना जब बजता है जब मैं ट्रैफिक में अटका हुआ होता हूँ एक रेड सिग्नल है या वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे या मुंबई में दिल्ली में कहीं पे भी ट्रैफिक में अटका you listen to that song and you're uplifted to a different level. That discovery is not possible with apps. Yes, Okay, I I mean it's completely not agree. possible with YouTube. You know, I don't know whether you agree with me, but that unpredictability is the biggest charm of radio listening. I completely agree. I might shatter your heart right now because if you don't know this, music managers जो होते हैं वो अब music लगाते हैं. We only, of course, serve the music. So Yes. we're no longer the chefs in the kitchen. We're actually just the servers, the waiters. और हम गाने पेश करते हैं. However, this is the season, the most active that radio gets. I remember being a radio jockey many, many years ago. एंड मुझे लगता था कि एक एंटरटेनमेंट का मीडियम है एंड आई वाज हैविंग लॉट ऑफ फन बट विद इन द फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स ऑफ मी बीइंग ऑन रेडियो मुंबई शहर में टेररिस्ट अटैक हुआ था एंड दैट वाज एट द ताज एंड दैट सॉर्ट ऑफ incident completely changed my perspective towards radio because that's when I realized कि रेडियो का primary motive क्या है. It is to keep people connected and to keep people safe. And it changed my trajectory as a radio jockey. I looked at my job a little more seriously because I realized कि उस दौर में, this is about 10 to 15 years ago, when networks were down, mobile networks were down, TV हर किसी के पास नहीं था. People who were on the road could only listen to radio. और उस दौर में, even though we were private FM, we were giving updates to people and we were not giving them news updates, but we were connecting them to their loved ones. जहाँ पर दो लोग शायद एक ही शहर में एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे. And I remember connecting, a son to his mother and, things like that. But yeah, the other reason why radio is important is because इस दौर में we're in the season of the monsoons in India. सबसे ज्यादा एक्टिव रेडियो जॉकीज को होना पड़ता है बिकॉज पानी भर जाता है हर जगह जिसकी वजह से ट्रैफिक अपडेट्स बदल जाते हैं. वी हैव टू वार्न आवर लिसनर्स कि आप इस तरफ से ना जाएं, यहाँ पर बहुत पानी है. एंड जनरली लाइक आई जस्ट थिंक दैट
a radio jockey actually comes into action when the city is in emergency. And speaking of the floods, of course, unfortunately, इस साल it's been a very, very heavy monsoon for the northern part of India. तो आप किसी भी प्रांत में देखें, चाहे आप पंजाब देखें, हिमाचल में जो इस वक्त हो रहा है, some really crazy videos have been coming to you. You've been getting goosebumps looking at those videos. There is an actor called Ruslan Mumtaz, मुमताज जी के बेटे हैं, जो अपने वीडियो में कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि मैं घर लौट पाऊंगा या नहीं, because there is so much of a flood happening in Himachal right now. In the middle of all of these emergencies, there was one video, okay, जहां पर मैंने देखा इस फ्लड के बीच में एक मगरमच्छ, crocodile जो है वो तैर के जा रहा है. Okay, as an 80s kid, let me admit to you, the minute I see crocodile, the only film I remember is खून भरी मांग. तो वो दहशत क्रोकोडाइल को लेकर वो दहशत क्रोकोडाइल को लेकर हमारे मतलब नस नस में भरा हुआ है. आई फ्रीक्ड आउट. आई वाज लाइक, ओ माय गॉड. आपने वो वीडियो देखा सचिन, एंड डू यू हैव एनीथिंग टू से? अपेरेंटली इट्स अ वीडियो ऑफ अ क्रोकोडाइल स्विमिंग इन द फ्लड्स इन पंजाब. आई वांट टू वेरीफाई, इज दैट इवन ट्रू? बिल्कुल सही है आपने कहा. ये क्रोकोडाइल एक मजेदार प्राणी है, क्योंकि ये क्रोकोडाइल जो है, जहां पर भी बाढ़ आती है, जहां पर भी फ्लैश फ्लड्स होते हैं, वहां पर ये पहुंच जाता है. क्योंकि ये वीडियो जो है वो गुजरात में, पंजाब में, हिमाचल में, मुंबई में, मद्रास में, बैंगलोर में, जहां कहीं पे भी फ्लडिंग हुई है वो वहां पे पहुंच गया है ना. अच्छा. तो ये वीडियो काफी पॉपुलर है. वो बेचारा पंजाब का एक भोला भाला क्रोकोडाइल है, उसको पता भी नहीं होगा कि वो इतना फेमस है बड़ा स्टार है. व्हाट्सएप पर. लेकिन ये मुंबई में भी पहुंच गया. देखिए, क्रोकोडाइल्स जो हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक एरियाज में रहते हैं, क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट है वो उनके लिए जहाँ पे एनवायरनमेंट है, उनका एनवायरनमेंट है वहाँ पे उसके लिए इवॉल्व हो चुके हैं. तो ये जो क्रोकोडाइल है, अगर वो बहते हुए आ जाए, either that crocodile is not able to withstand the force of the flood waters, which is why he or she has been dragged into areas where he or she cannot survive properly. लेकिन मुंबई में भी जहाँ पर काफी सारे क्रोकोडाइल्स हैं, लेक क्रोकोडाइल्स, वो भी पाए गए हैं जहाँ पर लेक्स नहीं. मुंबई में एक एरिया है पवाई, जो IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नजदीक है, और वहाँ पे क्रोकोडाइल्स पाए गए हैं काफी सारे. और यही क्रोकोडाइल जो है वो उसी स्पीसीज के क्रोकोडाइल और एक एरिया में पाए गए हैं जो 8-9 किलोमीटर दूर है. तो crocodiles are fairly resilient in that sense, so they can survive. लेकिन ये पर्टिकुलर क्रोकोडाइल जो है वो बहुत सारे एरियाज में पहुंच चुका है. वो बेचारा, उसको पता भी नहीं होगा कि वो इतना फेमस है, जैसे मैंने कहा. बट दिस इज हाउ इट इज. दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल सोशल मीडिया. मीडिया. आप कह रहे हैं कि ये जो क्रोकोडाइल का जो क्लिप है वो पंजाब के फ्लड का नहीं है, वो किसी और फ्लड का है. वो पटना के फ्लड का. अच्छा, वो पटना के फ्लड का है. माय गॉड. एंड इट्स सो it's so weird because what happens is it's a time of panic, right? ये एक नेशनल इमरजेंसी है. At the end of the day, a flood is a natural disaster जिसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट को तैनात होना पड़ेगा. राइट नाउ रेस्क्यू मिशंस चल रहे हैं हिमाचल में इस वक्त. पूरी सड़कें जो हैं वो धंस चुकी हैं. Suddenly there was a clip I saw of an ATM, and people were standing across it yelling saying ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया. और वो पूरा का पूरा ATM और उसके बगल में जितने भी वो पूरा का पूरा धंस गया. And it was crazy. First of all, it's an ATM, so I was like, oh my God, पैसा. That was the only thing that I thought of. But it's so scary. And in a time like this, जब आप ये क्लिप देखते हो, आप और ज्यादा पैनिक करते हो. And that's the reason why we're saying that अगर आपको ये क्लिप मिले क्रोकोडाइल को और लोग आपसे कहें कि ये पंजाब के फ्लड का है, तो प्लीज उनको करेक्ट कीजिए, उनको कहिए कि ये पटना का है. There's also been a sighting of the similar fashion in Gujarat at one point. The point being that it's ज्यादा things are already bad. Let's not make it worse. That's basically the point that we're making. और आपने जैसे कहा ना रोहिणी, कि रेडियो का जो माध्यम है वो सबसे ज्यादा उपयोगी तब होता है जब आप एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं. देखिए, सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा उपयोग अभी ट्विटर पर, फॉर एग्जांपल, या फेसबुक पर,
या व्हाट्सएप पर ये होना चाहिए कि अगर एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, जो एक एक्सट्रीमली वेल ट्रेन डिपार्टमेंट है हमारे गवर्नमेंट, एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एक्चुअली, बिकॉज अर्थक्वेक्स हो, फ्लड्स हो, कहीं पे फायर हो जाए, कहीं पे और कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, वो पहुंच जाते हैं। और उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली है कि लोगों को ना केवल बचाते हैं, लेकिन आगे जाकर भी उसको इवैक्यूएशन वो ऐसे करते हैं कि आगे जाकर भी उन्हीं लोगों को और ज्यादा तकलीफ ना हो। तो इसके लिए इतनी बढ़िया ट्रेनिंग उनको मिली है और वो बढ़िया ट्रेनिंग वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आप अमेरिका में गए हो तो आपको शायद अगर आप नेशनल पार्क में अगर ड्राइव कर रहे हो तो आपको ये जरूर आपने देखा होगा कि अगर आप चैनल चेंज करें तो वहाँ पे कम्युनिटी रेडियोस काफी है। वो कम्युनिटी रेडियो में हर 5 मिनट में ट्रैफिक अपडेट देते रहते हैं। अगर कोई बैर का अटैक हुआ हो तो वो देते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। अगर कोई अच्छे रेयर एनिमल का साइटिंग हुआ हो तो रेडियो पर वो अपडेट करते हैं, तो आप अपनी कार को डाइवर्ट करके वहां पे जा सकते। तो ये रेडियो का जो माध्यम है वो बहुत सालों से एक कनेक्टिंग माध्यम हुआ है। सोशल मीडिया को भी वैसे ही होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि हम रूमर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, या हम अफवाहों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और अफवाहों को ज्यादा स्प्रेड करते स्प्रेड हैं। करते Whereas in disasters like this, especially what you see in Himachal, it's horrific. Families have been separated from each other. 3-4 दिनों से हमें पता नहीं है कि उनको खाना मिला है या नहीं, क्योंकि जो कनेक्टिंग रोड्स है जो खाना पहुंचाते हैं वो ढस चुके हैं। बिल्कुल तो आप क्या करेंगी इस हालत में? तो यू कैन इमेजिन द मेंटल स्टेट, द फिजिकल स्टेट ऑफ दोस पीपल who will not only stranded. I mean, see, tourists can be airlifted and brought to their city or to some place where they can be, where they can come back to their hometown. लेकिन what about those who live there? एब्सोल्युटली जिनके घर वहां पे हैं, जिनकी पूरी जिंदगी है जिंदगी वहां पर है, बिल्कुल तो वो लोग क्या करें? सो आई एम जस्ट सेइंग, रोहिणी, दैट द अमेजिंग वर्क दैट रेडियो डज is the same amazing work that social media should be doing. should be doing Um, absolutely yeah. absolutely and I think that speaking of the Himachal floods, it's so sad. मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि देखिए लोगों की हालत वैसे भी खराब है और आप इस मोड पर अगर आप फेक न्यूज स्प्रेड करें तो लोग और भी घबरा जाएंगे बिकॉज यू नो यू आर पैनिकिंग पीपल। आई वांट टू शो यू एट दिस पॉइंट। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं देन यू कैन सी इट, अदरवाइज ऑफ कोर्स इफ यू आर लिसनिंग टू अस लेट मी डिस्क्राइब दिस इज अ वीडियो जहां पर एक डैम यानी कि बांध, इज डैम बांध इन हिंदी, इज दैट करेक्ट? Hmm. Bhakra Nangal Dam, मैंने तो सुना था when we were in school, I remember. It is a dam that, is up in the north. And there is a video that is circulating at this point claiming that Bhakra Nangal Dam में क्योंकि पानी का प्रभाव या उसका फोर्स इतना ज्यादा था कि वो डैम ही टूट गया है, वो बांध ही टूट गया है, जिसकी वजह से ये फ्लड्स और भी ज्यादा हो रहे हैं। So, and it's written there, as you can see, floodgate open in today's Nangal Dam. So I obviously freaked out. I said, oh my God, when you see something like this, you wonder कि अब इसकी वजह से और भी emergency हो जाएगी क्या? If a dam has broken, अगर बारिश ना भी हो रही हो, तो it can cause, crazy amounts of destruction. Is this video true? Is it true that the Bhakra Nangal Dam has broken down because of the... नो, नॉट एट ऑल। देखिए, ये जो वीडियो है वो एक चाइनीज डैम का वीडियो है, और इसमें भारत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसको हम इजीली कह सकते हैं कि ये फेक न्यूज है। और देखिए, हम 2 मिनट पहले वही डिस्कस कर रहे थे ना कि हम सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करें, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। और इट इज क्वाइट सैड कि लोग मर रहे हैं। देखिए, हिमाचल में करीबन 2 दिन पहले तक 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। पंजाब में भी लोग अस्त व्यस्त हैं क्योंकि काफी सारी एरियाज में फ्लडिंग हो चुकी है। दिल्ली में वाटर लॉगिंग हुआ है, नोएडा में, गुड़गांव में वाटर लॉगिंग हुआ है, गुजरात में फ्लडिंग हुआ है, महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर फ्लडिंग हुआ है। आईएमडी, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि अगले 3 दिन, देखिए हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं 12 जुलाई को, ये एपिसोड रिलीज होगा शायद 14 या 15 जुलाई। 15 से लेके 20 तक, और खासकर 18 से लेके 20 तक, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है कि
भारत के 23 राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो 23 राज्य यानी कि 29 में से 23 राज्य अगर मूसलाधार बारिश हो सकती है, तो यू कैन इमेजिन व्हाट द स्टेट ऑफ लाइफ विल बी. I don't want to get into the scientific details, but the fact is that जब बारिश नहीं हो रही थी मुंबई में 2 हफ्ते लेट हुई, तब काफी सारे एक्सपर्ट्स से कह रहे थे कि एल नीनो इफेक्ट जो है, जो पैसिफिक ओशन के वजह से जो एल नीनो इफेक्ट पूरे दुनिया भर में फैल जाता है, उसकी वजह से बारिश डिले हुई है. लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि बारिश तो और भी मूसलाधार तरीके से हो रही है काफी सारे एरियाज में भारत में. तो we'll have to leave the mathematics and the physics of weather prediction to the experts. But India has been facing such issues for a long time. And the least we can do is not allow social media to run away with false news or fake news. When you actually need social media to connect government with people, people with people, families with families, agencies with people, etc. So आई एम you know, सॉरी, आई आपने yeah, ये बात कही तो मुझे याद आया कि कोविड के टाइम पर आई थिंक दिस वाज ड्यूरिंग द सेकंड वेव, जब लोगों को बहुत, एटलीस्ट मुंबई शहर में बहुत जरूरत थी, फॉर अ लॉट ऑफ इट. द सेकंड वेव रियली ब्रोक अ लॉट ऑफ अस, बिकॉज वी वर इन द थिक ऑफ इट, स्पेशली क्योंकि हम रिपोर्टिंग भी कर रहे थे. एंड द अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट दैट केम इन, आई मीन आई स्टिल टीयर अप थिंकिंग ऑफ दैट टाइम, बिकॉज यू जस्ट फेल्ट सो हेल्पलेस. आई रिमेम्बर yeah, क्लियरली कि हम सब एक पोस्ट शेयर कर रहे थे जहां पर कहा गया था कि माय फादर नीड्स ऑक्सीजन. And then finally, and we what do? You will share yeah. it because you're doing the, you're being a good Samaritan. And I remember very clearly at that point I did a check जहां पर मैंने पूछा कि is your can I trace back the number, and I called the number and I said that is your father okay, because हम रेडियो पर कर रहे थे. और उस बंदे ने मुझे कहा कि मैम आई डोंट नो हाउ टू से दिस टू यू, माय फादर हैड लिटिल बिट ऑफ कोविड, ही इज कंप्लीटली फाइन. आई डोंट नो किसने मेरा नंबर डाल दिया है और हमें इतने सारे फोन आ रहे हैं, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग एंड वी हैव स्विच्ड ऑफ दैट नंबर. एंड आई Hmm, वाज जस्ट फीलिंग लाइक ओ माय गॉड, किसी को इस तरह से भी परेशान करना ठीक नहीं है, बिल्कुल. because it's somebody else could need your share and you've done this. Yeah. So it became, then I started verifying. Anybody would send me something, I would just call that number and be like, अभी भी क्या आपको इसकी जरूरत है, या तो मेडिसिन की या तो ऑक्सीजन की. And then it was easier for me, it was much easier for me. Anyway, let's move on to our next story. I didn't plan on doing this, Sachin, even though हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि हम शो पे क्या करने वाले हैं. I just want to talk about टमाटर इतने महंगे क्यों हो गए मुंबई में. How can we not talk about the टमाटर बॉस? पिज्जा बिना टमाटर के मिल रहा है क्या? मेरे को मैकडॉनल्ड्स बिना टमाटर के दे रहा है बर्गर. Is it true that McDonald's actually giving you burgers without tomatoes? Like what the hell is going on? I want my tomato. मेरे को टमाटो से कोई प्यार नहीं है. लेकिन आप रियलाइज करते हो कि टमाटर आपकी जिंदगी में कितना स्वाद लाता है. हर डिश का बेस टमाटर होता है. अगर आप इंडियन कुकिंग करते हो तो दाल में टमाटर डलती है, हर रस्सा में टमाटर डलता है. What happened to the damn tomatoes? Why is it so expensive? Please tell us. uh, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ. मैं जब दिल्ली में काम कर रहा था, तो हमारी एक कुक थी. वो हरियाणा से आती थी. मतलब हरियाणा की नेटिव है. और जब मैंने उनको कहा कि मुझे टमाटर पसंद नहीं है, तो उनका दिल बैठ गया. मतलब वो सोच रही थी ये आदमी बिना टमाटर के जी कैसे रहा है. तो so I'm not a great fan of tomatoes, but 2-3 reasons. One is कि हमारे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से अनसीजनल रेनफॉल हुई जनवरी फरवरी में, उसकी वजह से जो पूरा टमाटर का जो क्रॉप है पूरे नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, उसको पूरा उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि पूरा जो क्रॉप है वो सड़ चुका. उसकी वजह से एक शॉर्टेज आ गया. दूसरी बात यह है कि बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेन्स, there was a massive fungal infection which took over many of the crops, many of the farms that grow tomatoes in large scale. So that was the second reason. तीसरा रीजन ये है कि जब, और ये इकोनॉमिक रीजन है, वो इसलिए कि बिकॉज देयर वाज ऑलरेडी अ शॉर्टेज. देखिए, हमारे पास शॉर्टेज जरूर है, लेकिन हमारे पास स्टॉक की जो रिजर्व स्टॉक है वो काफी अच्छा रहता है. So what happened was that the middlemen in the country,
they took charge of the reserve stock that is available. एंड उनके वजह से हुआ क्या कि जो फार्मर्स थे उनके पास पैसे नहीं रहे, लेकिन मिडिलमैन जो है, जो होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट को टमाटर बेचते हैं, वो ज्यादा पैसा कमाने लगे क्योंकि दे हैड ऑल द स्टॉक. सो when you see the tomato prices rising, it is not just because of one reason. There are multiple reasons. Logistics is one. Our ability to store in our granaries is one. So all of these factors are. इसमें हुआ क्या है, जो फार्मर है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है क्योंकि उनका स्टॉक आइदर हुआ नहीं है या फिर बेच रहे हैं एट वेरी वेरी लेस प्राइसेस. बिल्कुल बिल्कुल. और जो आप और मैं जो मार्केट में जाते हैं खरीदने के, वो उनको सडनली पता चल गया कि करीबन जून के एंड में 80 से 100 रुपए टमाटर के भाव हो चुके थे. जुलाई के फर्स्ट वीक में 120 130 हो चुके थे, और आज हम जुलाई 12 पे हैं और 160 और 170 के बीच मुंबई और दिल्ली में टमाटर के प्राइसेस हो चुके हैं. कल ही मैंने हमारे सिस्टर रेडियो स्टेशन 94.3 के लिए एक स्टोरी की थी, जिसमें मैंने कहा था कि जो ट्रेडर्स हैं वो कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते में शायद 200 तक प्राइसेस जा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है. लेकिन 200, so many people are just switching over to tomato puree, so Yes, absolutely. so while this is not fake news, but the fact is that social media is also spreading all these rumors about tomato ke prices, ye kahan pe, so we need to be very very careful about what kind of news we are consuming. तो ओरिजिनल जो न्यूज सोर्सेज हैं, हमारे जो अखबार हैं, हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, हमारे जो एजेंसीज हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ट्विटर पे भी काफी ऑथेंटिक वेरीफाइड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उन्हीं को फॉलो करें. अगर आपको किसी ने बताया कि नहीं टमाटर के प्राइसेस 250-300 हो चुके हैं, वो बिल्कुल गलत है. आज एज ऑफ 12th of July 160 रुपए पर किलो प्राइसेस हैं. Oh my और God, प्राइम I मिनिस्टर, cannot afford it. I cannot afford it. I yeah, cannot afford it. इवन Just मैकडोनल्ड्स कांट. मैकडोनल्ड्स को आपने सुना होगा कहते हुए कि हम टमाटर नहीं डालेंगे. वो कह रहे हैं कि हमारे क्वालिटी टेस्ट से वो पास नहीं हुआ, लेकिन द एक्चुअल रीजन इज दैट इट्स too जस्ट टू expensive. एक्सपेंसिव. It's too expensive because the rest of the McDonald's burger costs you whatever it does, $100 or whatever, because it's cheap, you know. So one day we will talk about McDonald's as well. Like, today is not that day. Right now we're gonna go back to eating a tomato less. कल सेव पूरी में टमाटर नहीं था यार. मतलब ये दशा है हमारी इस वक्त मुंबई में. अगर आप सेव पूरी मंगाए, सेव पूरी भैया आपको उसमें टमाटर नहीं डाल रहे, वो सिर्फ आलू, प्याज और सेव के साथ आपको दे रहे हैं. एंड यू कांट इवन आर्ग्यू बिकॉज यू लाइक, नहीं सर मैं समझ सकती हूँ, मैंने घर पे भी नहीं खरीदे. सो व्हाइल वी फिगर रेसिपीज ऑफ And टोमेटो. dhania has also become expensive. So you have sepuri without tomato and dhania. So धनिया, can you imagine? धनिया ऐसे Yeah. बच्चे की जान ही लेंगे. Let's hope that it'll be a easier week next week at least. It's been a tough week for all across the country, whether it's the rains, whether it's the rising prices of tomatoes. Hang in there, guys. Hang in there. And just don't spread fake news. इतना आप करें और हम खुश रह सकते हैं even in this situation. But thank you so much, Sachin. I think we had a very good episode today. और आपसे मैं अगले हफ्ते मिलने आऊंगी. And until then, in case you'd like to write back to us, in case हमें सुनकर आपको भी थॉट्स लग रहे हैं, आपको कोई न्यूज जो है वो वेरीफाई करनी है, अब तो थ्रेड्स पर भी हैं हम. सो आई एम ऑन थ्रेड्स, आई एम रोटॉक्स, आई एम ऑन ट्विटर, आई एम ऑन इंस्टाग्राम, ROTALKS. और सचिन कलबाग, आप थ्रेड्स पर आ गए कि नहीं? Yep, बिल्कुल. Sachin Kalbag 0611 is my ID on Threads. Sachin Kalbag is on Twitter. आप कहीं पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं. And let's see whether Threads can beat Twitter at its own game. I hope so. I hope so. Elon Musk and Mark Zuckerberg are having an interesting time. Let's just leave you with that thought. हमारे Indian resident एक कॉमिक है, मतलब वो कैरिकेचर कार्टूनिस्ट हैं, उनका नाम है प्रसाद भट्ट.
And अगर आप प्रसाद भट्ट को follow करते हैं, just for a laugh, you can go and check out his feed. It's a really funny cartoon that he's made regarding the tweet that Elon Musk actually challenged Mark Zuckerberg with. So everything pop culture, of course, we will tell you on the show. But thank you so much for listening to us. और हम आपसे अगले हफ्ते मिलने आएंगे. This show is, of course, brought to you by HT Smartcast, the home for some of the best podcasts in the country. Thanks, Sachin. See you next time. Bye-bye. Bye bye.